welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. और मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? So today we are working on the chapter metallurgy और आज we are working on exercise 7C. So हमने successfully extraction of metals पढ़ लिया. Then we also studied extraction of aluminium. काफी thoroughly हमने वो समझा है. अगर कोई भी डाउट है definitely reach out to me at psclassesicse@gmail.com एंड मेक श्योर कि दोनों वीडियोस को अच्छे से समझ लो. दोज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. लास्ट तक भी बच्चों के उसमें डाउट्स रह जाते हैं या वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं. द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज कि जब आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, वेदर इट इज मी और समबडी एल्स, जब आपको एक बार समझ में आ गया है, मेक अ शॉर्ट नोट फ्रॉम दोज चैप्टर्स एंड पुट इट इन योर नोट्स. मतलब अपने रजिस्टर में होना चाहिए, बिकॉज आपके नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके नोट्स आपसे ज़्यादा बेटर और कोई समझ नहीं सकता. So it is just for you. Now, without wasting any time for today, let's get started with today's session. Alright students, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So today we are working on exercise 7C. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन state the position of aluminium in the periodic table. तो पोजीशन आपको एल्यूमिनियम की पता होनी चाहिए, या तो पता होनी चाहिए या पीरियोडिक टेबल से निकालनी आनी चाहिए. The answer is period 3, group 13. Now, second is give the chemical names and formula of the main ores of aluminium, iron and zinc. So, these are right here. Bauxite is hydrated aluminium oxide, Al2O3.2H2O. Cryolite is sodium aluminium fluoride, which is Na3AlF6. Corundum is anhydrous aluminium oxide, that is Al2O3. Similarly, moving on to zinc. Zinc blend, matlab zinc sulfide, matlab ZNS. Zincite, that means zinc oxide, that is ZNO. Calamine is zinc carbonate, that is ZnCO3. अब इस वाले में मैं I have forgotten to write iron वाले. So what you can do is iron वाले you can find out from the first part of the chapter. उसमें वो mention है. Next is कि bauxite के अंदर कौन सी impurities present होती हैं. Which impurities are present in bauxite? So bauxite is the big, मतलब आपका pure ore है. आपने उसके अंदर जैसे आप start करते हो, so bauxite के अंदर 60% aluminium होता है and aluminium oxide होता है, and the rest is impurities which is sand, ferric oxide and titanium oxide. ठीक है. Then the next question is what is red mud. तो red mud क्या होता है कि जब आप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जब आपका बनता है, वो डिसॉल्व हो जाता है सोल्यूशन में, and when it get dissolved there are impurities which are left behind called red mud. रेड मड के अंदर क्या क्या लेफ्ट बिहाइंड होता है? यू हैव फेरिक ऑक्साइड एंड सैंड लेफ्ट बिहाइंड after bauxite dissolves in NaOH forming aluminate and is removed by filtration. ठीक है. Moving on to the third question. In order, अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये देखने में ही स्केरी है, ये इतना स्केरी है नहीं. ठीक है. ये इस तरीके से दिखाया गया जैसे पता नहीं कौन से टाइप का क्वेश्चन है और क्या पूछ लिया हो. इतना कुछ खास नहीं पूछा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट आपको डराने के लिए है. तो बी केयरफुल विद सच क्वेश्चंस. आराम से पढ़ो, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से. ठीक है. In order to obtain 1 ton of aluminium, the following inputs are required. 4 ton of bauxite, 150 kg of sodium hydroxide, 600 kg of graphite. The aluminium compound is bauxite. In bauxite is aluminium oxide and the main impurity is iron oxide. Aluminium is obtained by the electrolysis of aluminium oxide dissolved in cryolite. ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, बस दे, इसको कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको यूज ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसके आगे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो जो आपकी बेसिक नॉलेज है चैप्टर की उससे ही डायरेक्ट यूज हो जाएंगे सॉल्व. पर हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना. ठीक है. बिना पढ़े ये मत बोलना कि यूज नहीं होगा. When bauxite is treated with sodium hydroxide solution, what happens? What happens to the aluminium oxide and to iron oxide? ठीक है. तो let's look at it. जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हीट करते हो अपने NaOH के साथ, सो Al2O3, दोनों का एक साथ आंसर दिया है मैंने, फर्स्ट और सेकंड का. ठीक है. सो Al2O3.2H2O, जब आपने इसको रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो सोडियम उसको क्या हुआ, आपके क्या पूछा था इन्होंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या हुआ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका यहाँ पर आ गया एज अ सॉल्ट. ठीक है. और ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा NaOH में, प्लस 3H2O. तो बॉक्साइड तो डिसॉल्व हो गया and forms a sodium meta aluminate because of the atmospheric nature of not atmospheric, amphoteric.
बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि अगर एल्यूमिनियम किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। दैट इज एम्फोटेरिक नेचर। तो इसी वजह से जब एल्यूमिनियम ने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर बना, और ये सॉल्ट सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, लीविंग बिहाइंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। क्योंकि डिसॉल्व हो गया, जो पीछे बचा दैट इज इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कॉल्ड रेड मड। और रेड मड के अंदर क्या क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड एंड सैंड, जो कि आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आंसर हो गया बी पार्ट। नेम द प्रोसेस यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट यू आर यूजिंग बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो 2AlOH होल थ्राइस, इसमें यू आपने हीट प्रोवाइड करी 1000 डिग्री सेल्सियस तक, तो यू गेट Al2O3 प्लस 3H2O, ठीक है। ये है आपका इम्पैक्ट। मूविंग ऑन, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। आपने फॉर्मूला भी लिख दिया Na3AlF6। राइट डाउन द वर्ड विच करेक्टली कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस। बाय डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन क्रायोलाइट अ कंडक्टिंग सोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। नॉन कंडक्टिंग हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो खुद नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए ही तो ऐड करोगे, उसको नॉन कंडक्टिंग बनाने के लिए क्यों ऐड करोगे? देन why is so much graphite required for electrolytic process? तो क्या होता है कि जब आप ग्रेफाइट आप उसमें यूज करते हो तो ग्रेफाइट ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज होता रहता है। सो अगर आपका ग्रेफाइट जैसे कार्बन कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट, तो जैसे कार्बन है C, उसके पास आके ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो पहले बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन और आके रिएक्ट करेगी तो बन जाएगा CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रेफाइट धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता रहता है। तो मतलब आफ्टर अ सेट ऑफ टाइम, आई एम नॉट एबल टू गेट द वर्ड, कुछ कुछ टाइम के बाद देन यू हैव टू रिप्लेस योर ग्रेफाइट रॉड्स, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। देन राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट कैथोड। सो कैथोड पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है। सो Al3 प्लस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, तो 4 एल्यूमिनियम के एटम्स बन जाएंगे। व्हाट इज द कैथोड मेड अप ऑफ? कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। इजी था, देखा जो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे कुछ भी यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन थे फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ ओर बॉक्साइड। The ore is first purified and then the metal is extracted from it by electrolytic reduction. Write 3 balanced equations for the purification of bauxite. Name a chemical used for dissolving aluminium oxide. In which state is the chemical used? Write an equation for the reaction which takes place at an anode during the extraction of aluminium by the electrolytic process. सब कुछ ही पूछ लिया भाई बेयर्स प्रोसेस का, ठीक है। सबसे पहले 3 इक्वेशन कौन कौन सी इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब जो बॉक्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2H2O, ये है आपका बॉक्साइड। आपने उसे NaOH के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर आया। ये जो सॉल्ट है ये आपका NaOH में डिसॉल्व रहता है, ठीक है। उसके बाद आप इसे ठंडा करते हैं, ठंडा करके आप इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। सो NaAlO2 प्लस 2H2O गिव्स यू NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस। काफी सारी इंप्योरिटीज यहीं रह जाती हैं NaOH में, जो सोल्यूबल है, सोल्यूबल जो सोल्यूबल है, और जो प्रेसिपिटेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वो वहीं बैठ जाता है। आप उस हाइड्रोक्साइड को निकालते हो, उसे वॉश करते हो एंड देन यू ड्राई इट, एंड देन आप उसे दोबारा से हीट करते हो। दिस टाइम यू हीट इट अप टिल 100,000 डिग्री सेल्सियस एंड यू गेट ऑक्साइड नॉट डॉट वाटर प्लस 3H2, ठीक है। और केमिकल्स आप कौन कौन से यूज कर रहे हो? केमिकल्स आप यूज कर रहे हो यूज फॉर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, केमिकल्स यूज फॉर रिफाइनिंग है ना। नेम अ केमिकल यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन विच स्टेट इज द केमिकल यूज्ड? नेम अ केमिकल यूज्ड टू डिसॉल्व, अच्छा डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए तो यस यू विल बी यूजिंग क्रायोलाइट। सो केमिकल्स यूज फॉर डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फ्लोर्सपर एंड क्रायोलाइट। तो एल्यूमिना 20%, क्रायोलाइट 60% एंड फ्लोर्सपर 20%। फिर उन्होंने पूछा एनोड पे क्या हो रहा है, तो थिक रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट आर सस्पेंडेड इनटू द फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट और उसका रिएक्शंस।
पहले ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन निकलती है, फिर ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे भी इन्होंने बस ऑक्सीजन वाला बताया, इन्होंने आपको कंप्लीट ग्रेफाइट वाला नहीं कहा. Let me just confirm it once. Write an equation for the reaction which takes place at the anode during the extraction of aluminium by electrolytic process. आप चाहे तो आप इसमें आगे मेंशन कर सकते हैं, बट इट जस्ट डिपेंड्स का किसके स्कूल ने क्या क्या कराया है, बिकॉज इतना ऑक्सीजन निकलेगा, दिस इज नॉट सफिशिएंट. ऑक्सीजन उसके बाद आपका कार्बन से रिएक्ट करता है, इट गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड, देन दिस CO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अगेन एंड गिव्स यू CO2. तो ये वाली इक्वेशन भी आपकी साथ में जाएंगी. Moving on to the sixth question. Fifth question. Okay. A to F below relate the source and extraction of either zinc or aluminium. So you have bauxite, coke, cryolite, froth flotation, sodium hydroxide, zinc blend. Write down 3 letters each from above in which these are relevant. तो जिंक के साथ क्या क्या रेलेवेंट है? जिंक ब्लेंड, क्योंकि वो जिंक का ओर है. फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्योंकि जो जिंक होता है, जो आपका सल्फाइड ओर्स होते हैं, वो जनरली फ्रॉथ फ्लोटेशन से सेपरेट किए जाते हैं. एंड कोक. ठीक है. उसके बाद आप आज, क्योंकि कोक से वो रिड्यूस हो सकता है, एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, जिंक हो सकता है. देन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के पास आ गए आप, तो यहाँ पे यू हैव क्रायोलाइट, बॉक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. फिल इन द ब्लैंक्स. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं. Okay, the ore from which aluminium is extracted must first be treated with sodium hydroxide so that pure aluminium oxide can be obtained. तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं. Pure aluminium oxide is dissolved in cryolite to make a conducting mixture. Write the formula of cryolite: Na3Al(F6). Now question number 6. Explain with reasons. In the electrolytic reduction of aluminum, the graphite anode is gradually consumed. ये इसलिए कंज्यूम हो जाता है क्योंकि ग्रेफाइट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जहाँ पे वहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उससे ग्रेफाइट ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता रहता है, इसी वजह से इट गेट्स कंज्यूम्ड. इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, व्हाई द एनोड हैज टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस प्रोसेस. सेम आंसर है. लिखना कैसे दिखा देती हूँ मैं आपको. Anode is oxidized to carbon monoxide which further forms carbon dioxide. So carbon plus oxygen, carbon monoxide plus oxygen, carbon dioxide. The anode has got to be replaced from time to time as it gets oxidized by the oxygen evolved at the anode. ठीक है. उसके बाद B part पे आ जाते हैं. Roasting is carried out on sulfide ores and not on carbonate ores. और इसका नेक्स्ट है, कार्बन कैन रिड्यूस लेड ऑक्साइड बट नॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. Roasting provides oxygen to convert metallic sulfide into metallic oxide, and so when heated in excess of air, carbonate is converted into oxide by loss of carbon monoxide, which takes place in the absence of air and when heated strongly. तो क्या होता है कि जब आप सल्फाइड को कन्वर्ट करो, जैसे आपके पास ZnS है, आपको उसको ZnO में बनाना है, तो आपके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है देने के लिए उसे, तो इसीलिए आप इसे रोस्टिंग की प्रोसेस से करते हो, जहां पे आप एक्सेस ऑफ एयर में उसे आगे ले जाते हो रिएक्शन को. जो आपका जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो इसीलिए आप सिर्फ इतना काम करोगे हीट प्रोवाइड करके कि जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उसमें से निकल जाए ताकि आपका ZnO आ जाए. टारगेट है कि मेटल ऑक्साइड तक पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है वो फिगर आउट करना है. इसी वजह से इस वाली रिएक्शन को हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं या एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है. नाउ द थर्ड पार्ट ने क्या बोला था कि जो कॉपर है वो तो रिड्यूस हो जाता है कॉपर का ऑक्साइड, पर एल्यूमिनियम का नहीं होता. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड. काफी तसल्ली से बैठा रहता है. एल्यूमिनियम को कोई जरूरत नहीं पड़ी है दोस्ती तोड़ने की, इट इज अस जो उसको फोर्सफुली ये रिलेशनशिप तोड़ने पे मजबूर करते हैं. It is not reduced easily by common reducing agents like carbon monoxide and hydrogen. Hence, electrolytic reduction was chosen as the method of reducing alumina. उसके बाद D पे मैंने लिखा है same as C, तो एक बार D का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. D का क्वेश्चन कहता है electrolytic reduction is done to obtain aluminium. ऐसा क्यों होता है तो मैंने आपको वो बता दिया. Why the food containing iron salts should not be cooked in aluminium utensils? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है भाई. Aluminium comes before iron in the metal activity series,
so it can displace iron from iron salts. Thus food containing iron salts should not be cooked in aluminum salts. Because if you do so, I'm sorry, I was just reading it once again. Because if you do so, what happens is कि दोनों आपस में react कर जाएंगे and aluminium can easily displace iron. ठीक है. An anode is, F part क्या है भाई? F part is a neutral gas other than oxygen is formed at the anode during electrolysis of fused alumina. ये मैं आपको बता के थक गई हूँ. The other gases, जैसे ऑक्सीजन निकला पहले, उसके बाद वो ग्रेफाइट को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एनोड है वहां ऑक्सीजन के अलावा एक और न्यूट्रल गैस निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसको रीड कर लेते हैं. An anode is made of carbon which gets oxidized in the presence of oxygen to form carbon monoxide, which is a neutral gas. कार्बन डाइऑक्साइड तक भी लिख सकते हो, इट्स ओके. उसके बाद why is powdered coke sprinkled on the top of the electrolyte? वो इसलिए स्प्रिंकल किया जाता है ताकि आपका हीट लॉस ना हो, और दूसरी बात जो आपका एनोड है वहां पे एक्सेस हीटिंग की वजह से आग ना लग जाए. So for 2 reasons you do that. So the first is reduces heat loss by radiation. The second is prevents the burning of anode. ये रहा. Then answer number 8. No, G. उसके बाद 7th. For each substance listed below, explain its significance in the extraction of aluminium. Bauxite आपका किस लिए यूज होता है? Bauxite is used for aluminium extraction. Sodium hydroxide is used for purification of bauxite by Bayer's process. जो आपका थर्ड है क्रायोलाइट is added to pure alumina to decrease the melting point और fusion temperature of pure alumina. क्योंकि जो प्योर एलुमिना है उसका डिफ्यूजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इज 2050 डिग्री सेल्सियस, तो उस चीज को कम करके क्रायोलाइट ब्रिंग्स इट डाउन टू 905 डिग्री सेल्सियस. देन ग्रेफाइट एक्ट्स एज एन एनोड. इट्स एन इनर्ट एनोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड. 8th is distinguish between electrolytic methods of reduction and refining. तो ये वाला जो आंसर है ना, मैंने exactly opposite points नहीं लिखे हैं. I just wrote the points क्योंकि जगह कम थी, मैंने लास्ट में लिखा था. So वो मिक्स मैच करके अपना आंसर थोड़ा सा आपको खुद फ्रेम करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हैलाइड ऑफ मेटल. ऑक्साइड्स ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम are reduced by electrolytic reduction of their fused salts. तो ये रिडक्शन प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को उसमें से निकाल देते हैं. जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके सॉल्ट्स में से ऑक्सीजन को निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है. ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन. ये जो आपके मेटल्स होते हैं, जो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. बहुत ही अच्छी दोस्ती है इनकी ऑक्सीजन के साथ, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देते. किसकी हेल्प से? रेगुलर रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से नहीं जाने देते. और रेगुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? यू हैव कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. नाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स is the separation of residual impurities like silicon and phosphorus. Presence of other metals and non-metals like silicon and phosphorus, unreduced sulfides and oxides of metals. It depends upon nature of the metal, purpose for which the metal is to be obtained, nature of impurities present. ये सारी की सारी डिटेल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. आई होप दैट मेक सेंस टू यू. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. Answer number 9. Give 3 ways in which metal zinc differs from non-metal carbon. At least one of the differences must be a chemical difference. अच्छा ठीक है, आपको 3 डिफरेंस देने हैं और एक केमिकल डिफरेंस देना है. केमिकल डिफरेंस का मतलब होता है या तो आप इक्वेशंस के अंदर डिफरेंस दो या उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता के डिफरेंस बताओ. सो सबसे पहला है द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, एटॉमिक मास इज 65.38. The atomic number of carbon is 6. Atomic mass is 12.01. Now zinc has 2 electrons in its outermost shell, so it loses 2 electrons during bonding and becomes electropositive. Carbon has 4 electrons in its outermost shell,
so it forms covalent bonds with other elements during bonding. Now इसका chemical आपका test, zinc reacts with oxygen to form zinc oxide. तो zinc plus oxygen gives ZNO. Carbon reacts with oxygen to produce carbon monoxide when amount of air restricted, and carbon dioxide when oxygen is more. So carbon plus oxygen gives 2CO, C plus O2 gives CO2. ठीक है, ये आपका वैसे वाला डिफरेंस हो गया. आंसर नंबर 10, A part. Aluminium is more active metal than iron but suffers less corrosion. Aluminium is a more active metal than iron but suffers less corrosion. इसका रीजन ये है कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, इट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड. तो वो आपके जो मेटल है, आपके पास जो भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस मेटल के ऊपर एक कोटिंग बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एंड इट डज नॉट लेट द आउटसाइड एयर टू गेट इन टच विद इट. तो इसी वजह से उसका कोरोजन वही स्टॉप हो जाता है. वेराज आयरन के केस में क्या होता है कि जैसे ही रस्टिंग स्टार्ट होती है, थोड़ा टाइम रस्टिंग ऊपर थी, फिर झड़ जाती है, and then the inner layer of the metal is exposed to oxygen and water in the atmosphere. इसको लिखना कैसे देख लेते हैं. In moist air aluminium undergoes, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ यही है. In moist air aluminium undergoes oxidation and a thin oxide layer is formed on its surface. This layer makes the metal inert. It acts as a protective barrier and stops further corrosion. और इक्वेशन क्या है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स Al2O3. उसके बाद एक्सप्लेन एंड गिव रीजंस व्हाई एल्यूमिनियम वेसल्स शुड नॉट बी क्लीन्ड विद पाउडर्स कंटेनिंग alkalis. Because aluminium reacts with alkalis, it should not be cleaned with powders containing alkalis. This causes the discoloration of aluminium. फिर इक्वेशन दे सकते हैं, aluminium plus NaOH plus water gives NaAlO2 plus 3H2. Moving on to the last question, fill in the blanks. During the concentration of bauxite ore, aluminium gas dash part of its dash nature, part of it amphoteric nature and is soluble. In Hoops process, pure aluminium is collected at the top of the electrolytic cell. Actually, it is at the bottom. The Hoops process. Actually, the Hoops process is not even in the syllabus. Hoops process is not in the syllabus, and all right, students. This is it for today's session. आज के session में we have successfully covered exercise 7C. सारे answers मैंने discuss कर लिए हैं. फिर भी कोई doubt है या समझ में नहीं आया, feel free to reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. Make sure to share the channel with your friends and help us move on. So that's it for today. We'll catch up in the next one.